A very good morning, sir, and good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Jay. On the occasion of International Day of Yoga, our Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, organized 5 days workshop on yoga as mode of stress management and healthy lifestyle. So it's start today, 9th to 13th May today, 2022, and it is the first day. First day, our resource person, Dr. Rajan Kaushal, is BAMS, MSc Yoga expert, Ayurvedic medical officer, Government of Punjab. And his topic is concept of stress and yogic management. And our chief patron, Professor Alok Chakrawal sir, Honorable Vice Chancellor, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh. And our patron, Professor Shailendra Kumar, Registrar, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. And our co-patron and also Dean School of Studies in Education, Professor V.S. Rathore sir. And our departmental head, Dr. Sanjeev Sardar sir. And organizing secretary and Dr. Sanjeev Sardar sir, also this program convener, and also our organizing secretary, Dr. T.R. Meena sir, assistant professor, Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya. Sir को मैं and also our organizing committee, Dr. Ratnesh Singh, associate professor, Department of Physical Education, and Dr. Manish Pandey, assistant director, and Dr. B.R. Rauti, assistant professor, Dr. Shalini Menon, also assistant professor, Dr. M.S. Dhapola sir, assistant professor, Dr. Kuar Singh sir, assistant professor, Dr. Vijay Kumar Chaurasia, assistant professor, Mr. O.P. Gange sir, assistant professor, and Dr. Surendra Kumar sir, assistant professor. All are Department of Physical Education from. And today's our resource person topic, concept of stress and yogic management. So I am requesting to you, sir, and hand over to you, sir. Sir, please continue your session, and we will waiting your valuable session. And thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी. जय हिंद दोस्तों. Respected VC sir, नमस्कार sir, and all the dignitaries. I am very thankful to the management and the convener of the 5-day workshop of from Guru Ghasidas जी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ कि आप लोगों ने मुझे समय दिया कि मैं अपना वक्तव्य आज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये 5 दिवसीय जो कार्यशाला है, ये योगा दिवस जो आने वाला है उसके समक्ष रखी गई है. तो योग का जो हमारे वैसे तो पुरातन हमारी संस्कृति में ही योग का वर्णन है आचार्य पतंजलि जी ने, और उससे भी पहले जो है श्रीमद् भगवद गीता में योग का पूर्ण वर्णन है. लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां बदली हैं, जो हम लोगों ने अपनी जो कार्यशैली है, दिन दैनिकी है, जो हमारा डेली रेजीम है, इसमें जो हमने भयंकर बदलाव किए हैं, वो हमें बहुत सी ऐसी परिस्थितियों में ले गया है जिसमें हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस होनी शुरू हो गई हैं. जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन है, वही जीवन हमारे विरुद्ध काम करने लग पड़ा है, जिससे हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि आप समझ सकते हैं डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइडिज्म है, और बहुत सारे स्ट्रेस है, उनमें से एक डिप्रेशन है. ये सब व्याधियां हमारे समक्ष उत्पन्न होती जा रही हैं. तो योग को एज ए थेरेपी अपनी जीवन शैली में तो लाना ही है, लेकिन विशेषतः उसको एज ए थेरेपी हम यूज करते हुए कैसे इन जो व्याधियों के जंजाल से हम बाहर निकल सकते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का टॉपिक योगा दिवस को समर्पित है, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स योगिक मैनेजमेंट. डॉक्टर साहब ने जैसे मेरा परिचय दिया, मेरा नाम डॉक्टर राजन कौशल.
मैं पंजाब गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ और योग में मैंने एमएससी किया हुआ है। तो आप सबका स्वागत है सर। आज का जो उद्बोधन है इसको शुरू करने से पहले एक वैदिक मंत्र के साथ हम लोग करेंगे। जो लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं वो लोग मेरे साथ बोलेंगे, लीड एंड फॉलो। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो वैदिक मंत्र है ये हमें इसका जो स्वरूप है वो ऐसा है कि जाने अनजाने में कुछ लोग इसे जो है कि गुरु शिष्य कह रहा है कि हम लोग साथ में बैठकर खाएं, है ना। इसी के ऊपर हमने इसका फिजिकल वो रख दिया है कि गुरु शिष्य कहता है कि हमें एक साथ बैठकर खाना चाहिए, लेकिन ये गुरु और शिष्य की पर्सनल जो हार्मोनी है उसको बढ़ाने के लिए इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है कि गुरु और शिष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक जो लेश मात्र भी उसमें जो डिफरेंस ना आए उनमें, ताकि उनकी जो पठन पाठन की जो उनकी क्षमता है वो निर्बाध विधि से चलती रहे। तो इसी भाव के साथ हम आप सब लोग जो है इस मंत्र के भाव के साथ आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्टिमुलस फॉर बॉडीज कोपिंग अप मैकेनिज्म टुवर्ड्स चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस। अर्थात मतलब ये है कि इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जो अभी की स्थिति है और जो आने वाली स्थिति है या अभी की जस्ट जो पास्ट स्थिति है, इस स्थितियों में जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए हैं उसको हमारी बॉडी कैसे उसके लिए प्रिपेयर होगी, या फिर अगर वो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो उनके साथ कैसे वो तालमेल सामंजस्य बिठाएगी। जी हाँ, तो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो कॉपिंग अप मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेस कहा गया है। बाय डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ एनी लिविंग बीइंग टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, वो स्टिमुलस कैसा हो सकता है आगे हम स्ट्रेस के जो स्टिमुलस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है उसको हमने देखना है कि वो किस तरह का स्ट्रेस है। पहला है यू स्ट्रेस। दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। मतलब अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस को तो हम विलेन के रूप में मानते आ रहे हैं आज तक कि स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रेस की विद्वानों ने व्याख्या की है। वो कह रहे हैं कि दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। कैसे है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ, हेल्प टू परफॉर्म बेटर, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हाउ? कैसे? देखिए, जैसे आज हम सब लोगों ने यहाँ अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचना था, तो हम लोगों ने कल छुट्टी का मूड था, आज हमने काम पे आना था, तो हम लोगों ने अलार्म सेट किया होगा कि हम लेट ना हो जाएं। ठीक है, तो जैसे विद्यार्थी हैं वो परीक्षा के लिए गोल सेट करते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स, अच्छी परफॉर्मेंस लेके आऊंगा। तो इसके लिए वो जो ट्रिगर मैकेनिज्म उनमें पैदा होता है जो उनको एक पॉजिटिव कंपटीशन की तरफ बढ़ाता है, कॉल्ड द यू स्ट्रेस। तो ये हमारे लिए हमारी जो टाइमलाइंस हैं, डेडलाइंस हैं, उनको पकड़े रखने के लिए, उनको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसलिए इसको जो है पॉजिटिव स्ट्रेस कहा गया है, यू स्ट्रेस को। आगे है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का जो मिसनॉमर, जो स्ट्रेस का मिसनॉमर डिस्ट्रेस। ठीक है, हमने टोटल स्ट्रेस को ही डिस्ट्रेस वाला को स्ट्रेस मान रखा है, लेकिन ये जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है इसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं बॉडी माइंड, जो हमारा बॉडी माइंड सोल हमारा जो कंपोजिशन है उसके ऊपर इसका
इफेक्ट पड़ता है आगे हम डिस्कस करेंगे। इट इंटरप्ट्स द कामनेस ऑफ माइंड। ये जो डिस्ट्रेस है, ये जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जिसको हम बड़े रूप में स्ट्रेस का ही नाम दे देते थे, ये हमारा जो बॉडी माइंड को जो है डिस्टर्ब करता है, हमारे माइंड की कामनेस को, जो उसकी शांति है, मन की शांति को ये भंग करता है। काजेज ऑफ वेरियस साइकोपैथोजेनेसिस, जो हमारी बहुत सारे मानसिक विकार हैं, उनकी ये पैथोजेनेसिस, उनकी जो उत्पत्ति है, उसमें ये कारण बनता है। आगे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वो टाइप्स थी, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, जिसको हम तुरंत वाला स्ट्रेस कहते हैं। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो धीरे धीरे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड जो है डेवलप होता है। तो एक्यूट स्ट्रेस क्या होता है? एक्यूट स्ट्रेस जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है, ऑल स्ट्रेस, जितने भी स्ट्रेस के वेरिएंट्स होते हैं, एक्यूट स्ट्रेस जो होता है, इट अराइज फ्रॉम द डिमांडिंग सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट, ऑफ रिसेंट पास्ट और एंटिसिपेटेड डिमांड्स एंड प्रेशर ऑफ द कमिंग नियर फ्यूचर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक्यूट स्ट्रेस होता है, ये जो अभी तत्क्षण आने वाला अगला समय है, उसको हम भाप के जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, या उसका जो रिएक्शन हमारे ऊपर होता है, उसको हम एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जो थोड़ी मात्रा में जो एक्यूट स्ट्रेस है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जैसे हमने पहले यू स्ट्रेस के बारे में बात की। अब ये यू स्ट्रेस कब डिस्ट्रेस में बदलता है, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ी मात्रा में ये हमारे लिए लाभदायक होता है सर। होता क्या है कि जब ये स्ट्रेस होता है, एक्यूट स्ट्रेस, तो ये हमारी दैनिक कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमारा एक ट्रिगर मैकेनिज्म अंदर से उत्पन्न हुआ है। जैसे हम FFF कहते हैं, फाइट फ्लाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, हम लोगों ने सबने जाना है कि जैसे हमारे सामने कोई विकट स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम सबसे पहले फ्राइटेंड होते हैं, हम उसको देख के उसको एनालिसिस करते हैं। अगर हम फ्राइटेंड हुए तो हम उसके जो हमारे भय के हमारे अंदर सिम्टम्स आएंगे, फिर हम जो है उससे फाइट करने के लिए तैयारी करते हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे हमारे बॉडी में जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, हमारे हार्मोन्स हैं, एंजियोटेंसिन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। और अगर वो भी नहीं होता, देन फ्लाइट मैकेनिज्म पे आते हैं, हम वहां से एस्केप करने के लिए अपने आप को ढूंढते हैं। तो ये सर्वाइवल प्रोसेस के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी स्थिति से एग्जिट कर जाना हमें उसके छोड़ने का, हमारे कमजोरी का कारण है, लेकिन ये ऐसा सिस्टम है जो हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी सर। तो आगे हम बात करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस की। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? ये थोड़ा लॉन्ग इसका ड्यूरेशन का होता है, इंसिडियस ऑनसेट होता है, ये मॉडरेट टू सीवियर इन सीवियरिटी होता है सर। मतलब कि जो एक्यूट स्ट्रेस होता है वो थोड़े लेवल का होता है, जल्दी होता है, जल्दी खत्म होने के उसके चांसेस होते हैं और उसको हो भी जाना चाहिए। लेकिन जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो मॉडरेट टू सीवियर सीवियरिटी का होता है। उसकी सीवियरिटी आपकी दिन दैनिकी को प्रभावित करती है और आपका जो उसका ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है ना। और ये जो आपका ओवरऑल बॉडी माइंड हार्मोनी है, इसको ये डिस्टर्ब करता है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि जो मान के चलिए, जैसे हमने अभी बात की, एक आम इंसान जो अपना दिन शुरू करता है, अब उठता है और उस दिन के टारगेट्स को साथ लेके चलता है कि जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचूंगा, मैं ये मीटिंग करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये फाइल निपटाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं फिर ये मीटिंग करूंगा। लेकिन जब ये स्थिति लगातार बनी रहती है, एक स्ट्रेस लेवल और दूसरे जो स्ट्रेस का जो इंड्यूसर है, उन दो इंड्यूसर्स के बीच में जब उसे गैप नहीं मिलता बॉडी को रिलैक्स करने का, तो आपके जो फर्स्ट स्ट्रेस, सेकंड लेयर ऑफ स्ट्रेस, थर्ड लेयर ऑफ स्ट्रेस एंड सो ऑन, एक के ऊपर एक पाइल अप होती रहती हैं। तो ये जो आपका अच्छे वाला गुड स्ट्रेस था, जो वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। आगे हम आगे हम स्ट्रेसर्स की बात करते हैं। स्ट्रेसर मतलब हमें
जो स्ट्रेस देने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। देखिए, कुछ हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल, जो हमारे शरीर की क्रियाओं के कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे टेम्परेचर चेंज, अब जैसे पीछे कुछ दिन पहले सुहाना मौसम था, अब सारे ही उत्तर भारत में जो है गर्मी की लहर आ गई है, तो उसके कारण बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बॉडी उसमें कोप अप करने के लिए काम कर रही है, हमारा पसीना ज्यादा आ रहा है, हमारी स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, उसमें हमारे जो साल्ट्स हैं वो ज्यादा जा रहे हैं, तो ये सब बॉडी को फिजियोलॉजिकल लेवल पे स्ट्रेस करते हैं। किसी के कोई इंजरी हो गई, कोई पेन है, क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक इलनेस है, पुरानी व्याधि है जो जा नहीं रही है, तो ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल है। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया है ना, हम आ रहे थे, आते हुए रास्ते में गाड़ी कहीं पे थोड़ी सी टच हो गई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई टच हो गई गाड़ी, या फिर कोई और सिचुएशन हो गई, ठीक है, वो या किसी से बात कर रहे थे, बात करते करते हमने उसको गलत ले लिया, उसने हमें ऐसे क्यों कहा, अरे मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो इस तरह के जो व्यवहारिक, इमोशनल, बिहेवियरल, आगे हम डिस्कस करेंगे उसकी कैटेगरीज। तो इस तरह की हमारी जो साइकोलॉजिकल, मानसिक जो हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं। अब सिर्फ कुछ होते हैं जो एब्सोल्यूट स्ट्रेसर्स होते हैं। एब्सोल्यूट स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, जो एक गिवन पॉपुलेशन के लिए, एक गिवन एरिया के लिए, डेमोग्राफिक एरिया के लिए सेम हो। जैसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गई, भूचाल आ गया, या फिर बाढ़ आई हुई है कहीं पे, तो उसके जो इफेक्ट होंगे वो उस जैसे अभी पेंडेमिक का दौर था, या अभी चल भी रहा है, कुछ थोड़ा सप्रेस हुआ है, तो उसमें क्या है, जो सबके लिए सामान्य था वो सभी के लिए था, तो उसमें सभी लोगों ने वैसा वैसा रिएक्ट किया, उसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है ना। तो उस वो जो है एब्सोल्यूट स्ट्रेसर था, यूनिवर्सली था। जो आगे आते हैं रिलेटिव स्ट्रेसर, वो होते हैं डिफरेंट रिएक्शंस इन डिफरेंट पर्संस। जैसे आप मान के चलिए कि जैसे हम सब लोग विद्यार्थी हैं, तो जैसे एग्जाम है, आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम का है, मान लीजिए डेटा एनालिसिस का है, कोई विद्यार्थी उसको कहेगा कि अरे वाह ये तो मेरा फेवरेट है, मेरे तो इसमें से है ना, मतलब मेरी तो परफॉर्मेंस इसमें ये रहेगी, उसका उसके प्रति जो रवैया है, जो बिहेवियर है वो अलग होगा। लेकिन जो विद्यार्थी उसमें कमजोर होगा, या जिसने साल भर उसमें अच्छे से अपना इनपुट नहीं दिया है, तो वो कहेगा कि अरे डाटा एनालिसिस का पेपर है यार, हाय मर गए, है ना। तो इस तरह के उसके व्यक्ति भाव होंगे। तो रिलेटिव स्ट्रेसर, कोई व्यक्ति उसको कैसे उसमें करता है, इसमें ऑब्जेक्टिफाइएबल चीज नहीं होती है, सब्जेक्टिव होता है, मैं कैसे कर रहा हूं, आप कैसे कर रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं, वो विद्यार्थी फला एक्स विद्यार्थी कैसे कर रहा है, तो ये सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि टाइमलाइन को वो मीट करना, कुछ लोग आराम से अच्छे से वो प्रेजेंटेशन बना के रखेंगे, जब टाइम आएगा तो अच्छे से उसको दे देंगे। कुछ लोग होते हैं कि मतलब प्रेजेंटेशन है और तभी के तभी वो लगे हुए हैं उसको दोबारा उसमें काट छाट करने के लिए, और पता चलता है कि वो उस समय जो स्ट्रेस की एक वैरायटी है, एंजाइटी, एंशियस परफॉर्मेंस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो अभी हमने पढ़ा कि फिजियोलॉजिकल, मतलब बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, होता क्या है भाई, होता ये है कि जैसे ही हमें स्ट्रेस का हमारे बॉडी, हमारा ब्रेन सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो उसकी तैयारी में कुछ चेंजेस लेके आता है। जैसे हमारा ब्लड शुगर लेवल है एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आगे आने वाली स्थिति में मेरी बॉडी को कार्य करना है, तो जितना भी आपका रिजर्व होगा ग्लूकोज, वो एक्टिव मोड पे आ जाएगा लिवर वगैरह में से बाहर निकल के, तो उसके कारण पेरिफेरी में आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी की आगे कड़ियां जोड़ के चलें, जैसे हम इधर मेडिकल में लेके चलते हैं, यही लोग जो बार बार स्ट्रेस में रहते हैं, अरे स्ट्रेस से कैसे शुगर हो गया, है ना, हम कहते हैं ना कि मेरी तो जीवन बड़ा तनावपूर्ण गुजरा तो मेरे को शुगर होगी, फला आदमी को शुगर होगी, तो कैसे होगी शुगर का, स्ट्रेस से क्या, वो स्ट्रेस तो दुखद चीज है, ये शर्करा का रोग कैसे में भाई, तो वो ऐसे हो गया, बॉडी को हमने बार बार ट्रिगर करके रखा, बार बार ट्रिगर करके रखा कि कुछ होने वाला है, बॉडी तैयार रहे, तो उसने ग्लूकोज जो है अपना ग्लाइकोजेनेसिस के माध्यम से लीवर में से निकाल लिया,
और वो काम नहीं आया या फिर उस लेवल पे नहीं हो पाया तो वो घूमता रहा आगे। अभी सुबह का अभी हमारा जो ये स्ट्रेस का कोई मुद्दा था वो खत्म नहीं हुआ था, रास्ते में जाते हुए पड़ोसी से हमने तू मैं होगी, फिर हमारा माथा गर्म हो गया, फिर उससे जो हमारा फिर दोबारा से ये सारी चीजें बढ़ गई। ठीक है, अब जो हमारी बॉडी में वीक पॉइंट होगा जेनेटिकली, हम जहां पे वीक होंगे, अगर हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पेंक्रियाज में या फिर इसमें शुगर को डील करने वाले उसमें होगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी क्रॉनिक में। लेकिन अगर हमारा हार्ट में कोई ऐसी दिक्कत होगी तो हमारे हार्ट पेन, एंजाइना या फिर ब्लड प्रेशर की स्थिति, ऐसी हमारी बीमारियां जो वो साइकोपैथोलॉजीज हैं वो बाद में साइकोसोमैटिक पैथोलॉजीज बनकर हमारे शरीर में बनती जाती हैं। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। जब एक्यूट स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बॉडी तैयार रखती है, बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब भी कोई स्ट्रेस में होता है तो हम उसको कहते हैं बैठ जाओ भाई, थोड़ी सांस ले लो, शांत हो जाओ, है ना। जैसी अभी हमने भी कुछ क्रियाएं करके देखी, जैसे हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल में आता है, हमारी जो थॉट प्रोसेस की क्लियरिटी होती है, हम सोचते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो हमारी क्लैरिटी थॉट्स में आती है। हार्ट रेट हमारा, दिल धक धक करने लगता है, ब्लड प्रेशर पहले ही बताया बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे बढ़ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आप जानते हैं बहुत सारे 12 के लगभग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कुछ प्रिकर्सर्स तैयार रहते हैं कि बॉडी को अगर ब्लड लॉस हुआ तो वो एक्टिवेटेड रहेगा। मसल टोन, हमने देखा है कि हमारी मसल टोन जो है इंक्रीज हो जाती है, हमारी पर्सपिरेशन, पसीना बढ़ जाता है, डाइजेशन, क्योंकि उस समय पे भूख जो है वो एक सेकेंडरी मुद्दा हो जाती है जब हमारे जीने और मरण की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो डाइजेशन है वो थोड़ी देर के लिए पीछे डाल दी जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हार्मोनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, उसमें आगे लंबी चौड़ी लिस्ट है कौन से हार्मोन्स कम होते हैं, कौन से हार्मोन्स बढ़ते हैं। अग्रेसर जो होते हैं, एजिटेशन देने वाले होते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, वो सारे हार्मोन्स हमारे बढ़ जाते हैं, पीपल्स डायलेट हो जाते हैं। इस तरह की एक इसमें व्याख्या दी गई है। ये बॉडी का रिस्पॉन्ड है, उसी का पिक्टोरियल ये मेथड है। इसके बाद है जो हमारे 4 स्टेजेस, जो स्ट्रेस की डेवलपमेंट कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस जो भी है ये एक मानसिक प्रोसेस है। तो हमारा साइकिक फेज होता है, इसमें हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं उत्पन्न होते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, हमारी एंजाइटी और वरी, चिंता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, हमारी इरिटेबिलिटी, हमारा मन नहीं लगता, हम खिजे से जो रहते हैं अपनी वातावरण से, उसी वातावरण में कल तक हम बहुत अच्छे भले थे, आज अगर कोई हमारे अंदर होगी, वही क्लासरूम, वही हमारे घर का डाइनिंग टेबल, वही सब चीजें हमें जो है इरिटेट करने लग जाती हैं बिना किसी कारण से। उसके पीछे क्या होता है, हमारा जो साइकिक फेज हमारी स्ट्रेस का चल रहा होता है। ठीक है, ऐसी एंगर और मूड स्विंग्स आ जाती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है हम लोगों में, हम छोटी छोटी बातों को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। अपैथी हो सकती है, अपैथी का मतलब होता है आपका वैराग्य भाव, मतलब वैराग्य भाव नहीं कह सकते, लेकिन चीजों से अलग होना, अपैथी हो नहीं, उससे दूर होना, आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं ऐसी चीजों में। ठीक है, आपकी जो स्लो थिंकिंग हो सकती है, आप उस विषय के बारे में बहुत देर तक धीरे धीरे लगातार सोचते रह सकते हैं। ठीक है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस हो सकती है, आपको लगता है कि यार मैं व्यर्थ हूँ, है ना, मेरे मतलब कोई मुझे इसमें साधन नहीं मिल रहा इस स्थिति से बाहर आने का, जबकि वो दरवाजा, वो जो जहां से एक जो आशा की किरण आती है, वो खिड़की बिल्कुल आपके सामने होती है, लेकिन आप हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं और आप उस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद आपके बिहेवियरल कुछ सिम्टम्स हैं, आप टाल मटोल करने लग जाते हैं, आपको जो इम्पेशंस हो जाती है, आप अधीर हो सकते हैं। ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो दायित्व है आप उसका निर्वहन करने में सक्षम अपने आप को नहीं मानते या फिर उसके लिए कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के हमारे पास बिहेवियरल और
साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। फिर आता है साइकोसोमैटिक फेज। ये जो है जनरलाइज चेंजेस होती हैं, इसमें बॉडी में जनरलाइज चेंजेस आती हैं, हार्ट रेट बढ़ गई, श्वास बढ़ गया, आपका पसीना ज्यादा आ गया, तो इस तरह से आपके जनरलाइज होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। ये सब चीजें स्पेसिफिक नहीं है जो हमने पहले बताई हैं, ये सारी बॉडी में कहीं भी कुछ होगा तो ये उभर आएंगी। आगे आता है सोमैटिक फेज। अब जो पहले मानसिक लेवल था, फिर मानसिक और शारीरिक लेवल था, अब वो सोमैटिक फेज में आ गया आपका। उसमें जो फिजिकल लेवल, फिजिकलनेस आ गई, उसमें आपके इंपेयर्ड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स आएंगे। जैसे किसी का मान लीजिए किसी तरह से जेनेटिकली उसका स्टमक की लाइनिंग उसकी खराब है, तो उसको पेप्टिक अल्सर, उसको खाने में जो है इंडाइजेशन वगैरह होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और उसको हाइपर एसिडिटी रहनी शुरू करेगी। पेशेंट कंप्लेंट करेगा, ऐसा व्यक्ति कंप्लेंट करेगा कि जी मैं रात को सोता हूँ, बड़ा अच्छा सोता हूँ, लेकिन 2, ढाई, 3 बजे क्या होता है, मुझे खट्टे डकार आने लग जाते हैं, मतलब है ना, जैसे एसिडिटी होने लग जाती है। या फिर अगर उसका कुछ और होगा, मान लीजिए उसकी गट में जेनेटिक वीकनेस है, तो वो कहेगा कि जी मतलब मुझे पता ही नहीं चलता, अचानक से मुझे बिना किसी कारण के, घर का खाना खा रहा हूं पिछले 15-20 दिन से, लेकिन 2 दिन से क्या हुआ कि अचानक से मुझे तो डायरिया हो गया, अतिसार हो गया, लूज मोशन लग गए मुझे। तो कारण कुछ नहीं होता, वो उसकी जो है सोमैटिक फेज में उसका स्ट्रेस चला गया है ना। भय जो आयुर्वेद में कहा गया है, ये भी अतिसार का एक कारण कहा गया है, क्रोध भी एक कारण कहा गया है। तो जब ये भी फेज और आगे निकल जाता है, हम इसमें इंटरवेंशन नहीं करते हैं, हम इसकी रोकथाम नहीं करते हैं, तो ऑर्गेनिक फेज में चला जाता है। इसमें जो वेल सेटल्ड, जैसे अभी हमने पहले मैंने कहा कि उसको पेप्टिक अल्सर हो गया है ना, या फिर उसको आईबीएस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, या फिर उसको थायराइड में पहले जो उसको सिर्फ जनरलाइज सिम्टम थे, हाथ में पसीना आ रहा था, उसको बिना किसी कारण के भय लग रहा था, अब वो उसका टारगेटेड ऑर्गन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गया, और उसको जो अब मान के चलिए थायराइड हो गया, या फिर एंजाइना हो गया, या फिर उसको कोई भी और जो जैसे डायबिटीज हो गया, तो इस तरह की जो डिजीजेज है उसको सेटल डाउन हो गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जो है सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है, हमने पहले डिस्कस कर लिए, फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और बिहेवियरल सिम्टम्स। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे पुराने आयुर्वेद और योग शास्त्र के ग्रंथ हैं, इसमें क्या कहा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस इन भगवत गीता। भगवत गीता में हमें मालूम है कि स्ट्रेस का वर्णन किया गया है। सबसे पहले ही जो अध्याय है उसमें अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो अपने स्वजनों को देखकर मुझे जो है मेरा जो मन है वो बैठा जा रहा है, मेरे जो सीदंती मम गात्राणी मुखम परिशिष्यति, आपने ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से पढ़ा होगा कि मेरा जो शरीर है वो बैठा जा रहा है ना, और मेरा जो मुख है वो सूख रहा है। ऐसा उन्होंने स्ट्रेस के जो पर्टिकुलर लक्षण, जो कार्डिनल सिग्नल साइंस हैं, वो श्रीमद् भगवद गीता में दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रेस होता क्यों है, हम इस पे चर्चा करें तो ध्यातो विंश्याम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विवंशा स्मृति विवंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो दूसरे अध्याय में जो हमें बताया गया है कि क्यों स्ट्रेस उत्पन्न होता है, जब हम अपने विषयों की तरफ, हम अपने सेंस ऑर्गन्स के जो प्लेयर्स की तरफ हम जाते हैं, विषय भोग जिसको हम कहते हैं, विषय भोग की तरफ जाते हैं, तब हमारे जो उन विषयों का ध्यान मात्र, स्मरण मात्र करने से ही हमारे उसमें जो संगस्तेषु उपजायते, हमारा उसमें इंटेलिजेंस उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर उस संग जब हमारी उसमें इंटेलिजेंस होगी, हम बार बार उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं,
तब हमारे मन में उनके प्रति कामात समझाए, मतलब कि हमारे प्रति उनके मन में डिजायर्स पैदा होती हैं कि यार अच्छा ऐसा होता है, ये ऐसा होगा। अच्छा, मान लीजिए हमने किसी के कपड़ा पहना देखा किसी पर्टिकुलर रंग का, है ना, हमें भा गया, हम बेफजूल में ही अपने मन को उसकी तरफ लगाते रहेंगे। हम अपने 20 काम छोड़ के हम सेम ब्रांड का सेम उसकी शर्ट को मार्केट में ढूंढते फिर रहे हैं। तो ये हमारे मन में काम की उत्पत्ति हो गई उससे। ठीक है। अब कामात क्रोधो अभिजायते, मान लीजिए कि ये एक हमने आपको एक ऐसी व्याख्या दी, आप अपने आसपास ऐसी और बहुत सारी ऐसी जो उदाहरणें आप सोच सकते हैं। अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और जब वो क्रोध में मनुष्य होता है तब मनुष्य सम्मोहित हो जाता है, मनुष्य अपना अच्छा बुरा नहीं देख पाता। उस क्रोध में वो जो ऐसे अनैतिक कार्य भी कर बैठता है जो उसको नहीं करने चाहिए। तो वो जो नाश हो जाता है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है। जो हमने पहले सदाचार पढ़ा है हम उसको भूलकर कदाचार की और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, और उसकी तरफ जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक है। बुद्धि हमें, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमें बताता है शार्पली कि दिस इज डू, दीज आर डूज एंड दीज आर डोंट्स। लेकिन जब हमारा बुद्धि का नाश हो जाता है तो हम डूज और डोंट्स को भूलकर हमें जो अच्छा लगता है हम उसके प्रति इंडल्ज हो जाते हैं और कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं जो कि हमें कदाचित नहीं करना चाहिए, और हमारी जो वो बुद्धि का जो नाश है वो हमारे मनुष्य का नाश कर देती है। ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता में स्ट्रेस क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से हमें जो है स्ट्रेस होता है, क्या क्या उसके लक्षण है, जैसे अर्जुन में उसके क्या क्या लक्षण आए वो सब हमें हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी उनका कुछ कुछ वैसा ही रूपांतर वो करते हैं, उसका जो बताए गए हैं वो वाले सिम्टम। ऐसे ही आयुर्वेदा से हूं मैं, आयुर्वेदा में भी चरक और सुश्रुत और भागवत संहिता में और सारी संहिताओं में ऐसा ही कहा गया है कि ये जो हमारा मन है यही हमारे प्राणों का नियंता प्रणेता च मनसा, जो हमारी जो मेंटल फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। आगे और मन के लक्षण है विषादो रोग वर्धना नाम, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है विषाद है जो स्ट्रेस है, जो हमारा हर समय जो नेगेटिविटी से घिरे रहना है, ये हमारे रोग को उत्पन्न करने वाला और रोग को बढ़ाने वाला बताया गया है, विषादो रोग वर्धना। ठीक है। आगे कुछ और ऐसे ही आचार्यों ने जो प्रज्ञापराध होता है, प्रज्ञा होती है हमारी जो डिसीजन पावर होती है, प्रज्ञापराध उसके विपरीत जाकर हमने जो कार्य किए होते हैं वो उनको प्रज्ञापराध कहते हैं। आयुर्वेद में जो प्रज्ञापराध है ये रोगों का कारण बताया गया है। जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो जा रहा है या कहीं बैठा है और सामने मान लीजिए उसको गुलाब जामुन सर्व हो गई। अब वो जानता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, कल ही मैंने अपनी शुगर चेक करवाई है 200 थी, 180 थी, लेकिन जैसे ही उसने विषयों का सामने देखा अपने, उसको अपनी रसना इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं रहा, उसने गुलाब जामुन को देख के खा लिया। क्या फर्क पड़ता है यार, जो ऐसा चलता है एक गोली और खा ले, ऐसी कुछ बातें हम सुनते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये प्रज्ञापराध, उसने अपनी बुद्धि के विपरीत जाकर के वो काम किया तो उसको उसका डायबिटीज है जो वो और भी खराब हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको और आगे वाली अपनी एग्जांपल्स में अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये काम अनैतिक है, आपकी बुद्धि आपको उसके लिए वार्न भी करती है, गार्ड भी करती है, लेकिन आप उसको सर पास करके अरे कुछ नहीं होता, सब करते हैं, है ना, कुछ नहीं होता, ये तो सब बातें हैं, जब आप ऐसे कुतर्क देकर उसको सर पास करते हैं बुद्धि को, तब प्रज्ञापराध होता है। और फिर इस तरह के आपके जो डिसीजन आपकी बॉडी माइंड और हेल्थ के आपके अगेंस्ट जाते हैं। ठीक है जी। आगे योगा में भी पंचक्लेशा का वर्णन किया हुआ है। ये भी पंचक्लेशा जो हैं अविद्या, अस्मिता, रागा, द्वेष, अभिनिवेश जो हैं, ये जो हैं
बॉडी, जब हम इस तरह की पंचक्लेश हमारे मन में जो फैकल्टीज उत्पन्न होती हैं, तो ये भी किसी ना किसी स्तर पर जाकर मानसिक विद्वेष को उत्पन्न करती हैं। आगे पंचकोश बॉडी है। पंचकोश बॉडी में हम सब जानते हैं कि हमारी जो रचना है, हमारी जो जो हमारी होना अस्तित्व है, ये हमारा जो 5 कोशों पर डिपेंड करता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसी लेवल पे ये उत्तरोत्तर जो है इनकी इंपॉर्टेंस बॉडी में है ना। अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल शरीर है, प्राणमय कोश जो हमारी एनर्जी का, वाइटल एनर्जी का फ्लो है, मनोमय कोश हमारी जो मानसिक क्रियाएं हैं, विज्ञानमय कोश हमारी बुद्धि का कोश है जो हमारी बुद्धि इसको गवर्न करती है, और आनंदमय कोश जो है सच्चित आनंद स्थिति है, जिस स्थिति के लिए हम हमेशा ही कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हम उसकी तरफ रहते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि हमारे मनोभाव जब विकृत होते हैं तो हम प्रज्ञा अपराध में जाकर गलत रास्तों पे चले जाते हैं, और आनंदमय कोश की जो हमारी यात्रा है उसमें व्यवधान आता है। तो ये जो है ये भी एक स्ट्रेस का कारण है, इसमें बताया गया है। थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, मैं थोड़ा जो ये व्याख्या है, ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्ट्रेस का। अब हमने करना क्या है, तो इसके लिए हम लोग योगा में क्या हमारे पास सॉल्यूशन है, रिलैक्स द बॉडी। अब बॉडी में हमने देखा इतना स्ट्रेस हुआ, तो उसमें हमने क्या करना है, आसनास से हमें रिलैक्सेशन होगी। ठीक है, स्लो डाउन द ब्रीदिंग। हमने देखा स्लो डाउन द ब्रीदिंग से हमारा उसका एम कैसे हमें पूरा होगा, वो है प्राणायाम से। और काम डाउन द माइंड, काम डाउन द माइंड, मन की जो स्थिति है उसमें हम समरसता कैसे लाएंगे, अगर हम ध्यान में बैठेंगे। ठीक है जी। आसनास की एक लिस्ट है, ठीक है, लूजनिंग एक्सरसाइज है, सूर्य नमस्कार है, अर्धकटी चक्रासन है, पद्महस्तासन है, शलभासन है। इस तरह के बहुत सारे आसन हैं जो हमें रिलैक्सेशन देते हैं। जब हम आसन की स्थिति में जाते हैं और वहां पर स्थिरता से और प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं कुछ देर, ऐसा नहीं कि एक पोज बनाया फोटो खिंचवाने के लिए और धड़म से शरीर को नीचे गिरा दिया। स्थिरम सुखम आसनम, उस स्थिति में हम कुछ देर के लिए रहते हैं, और जो ततो द्वंद्व विघातनम, जो वहां पर हम जो द्वंद्वों का विघात करते हैं, उन द्वंद्वों से परे जाते हैं, तो आसन की हमारी जो स्थिति है वो सिद्ध होती है। प्राणायाम, प्राणायाम में बहुत सारे किस्म के, 8 किस्म के तो प्राणायाम हम जानते ही हैं, अलग अलग गरण संहिता इत्यादि में, हठ योग में और भी ध्यान प्राणायाम का वर्णन किया है। आगे ध्यान है, ध्यान की बहुत सारी विधाएं हैं। ओम मेडिटेशन हो सकती है, कुछ डेवलप की हुई मेडिटेशन हैं, जैसे साइक्लिक मेडिटेशन है, IRT, QRT, DRT, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये साइकिक फेज में कैसे काम करती हैं और किस कोश पे कौन सी काम करती है, ये अभी थोड़ा समय कम है। साइकोसोमेटिक में जैसे सिम्टम्स क्या होंगे, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, है ना, ट्रेमर्स हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो प्राणायाम है। प्राणायाम प्राणमय कोश में आपके ये काम करेगी, और इसमें एक्सरसाइजेस क्या हैं, डीप रिलैक्सेशन है, प्राणायाम है, आसन जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ऐसी सोमेटिक फेज में है, ठीक है जी, ऐसी ऑर्गेनिक फेज में है, लेकिन वहां तक पहुंचना ही नहीं देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा होता है कि जब तक हमें सारी चीजों का आभास होता है तब तक देर हो चुकी होती है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक फुल फ्लेज्ड जो है पेशेंट के रूप में हमारे सामने आता है। उसके अन्नमय कोश में जो डीप सीटेड व्याधियां जो बन चुकी होती हैं, थायराइड होता है,
सर कोई दिक्कत तो नहीं आई? हम वहीं पे हैं। हेलो अमित सर। यस सर, नो इश्यूज सर, हाँ कंटिन्यू जी, सर। सॉरी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी, कोई सॉरी। तो मैं कह रहा था कि इस तरह की हमारी जो ये जो हमारे आसन प्राणायाम ध्यान अष्टांग योग है, इसका पूरा जो हमारा वर्णन दिया गया है और जो हमने पीछे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया स्ट्रेस वाले को, इसमें कहाँ कहाँ पे वो पहुंचता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आगे हम ध्यान की मुद्रा में हमने बात की साइक्लिक मेडिटेशन पे। मैं कुछ समय लेना चाहूंगा। साइक्लिक मेडिटेशन जो है ये मांडुक्य उपनिषद में से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि लय संबोधे चित्तम विक्षिप्तम शमेत पुनः सकशायम विजानियात संप्राप्तम न चालेत। ये साइक्लिक मेडिटेशन का वर्णन इस तरह से हमारे मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन तो स्थिर बैठने का काम है, जबकि साइक्लिक का मतलब होता है जो अवस्थाओं में। तो ये कैसे हो सकता है? कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये रहा कि हम अपनी बॉडी में जो लय संबोधित चित्तम, हम जो हमारा मन है वो अगर ड्रॉजीनेस हो गया है, लय में चला गया है, तो हम उसको संबोधन करेंगे, हम उसको एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे उसको। विक्षिप्तम शमेत पुनः, अगर ये विक्षिप्तावस्था में मन चला गया है तो हम उसका शमन करेंगे। सकशायम विजानियात, हम अपने अंदर की जो एजिटेशंस हैं हम उनको ढूंढेंगे और हम उनको इस तरह से स्थापित करेंगे कि वो पुनः पुनः हमारे मन में आकर हमें डिस्टर्ब ना करें। ये इसका जो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है। ये जो हमारा साइक्लिक मेडिटेशन है, ये कुछ अल्टरनेटिव स्टिमुलेशंस और रिलैक्सेशंस की एक पैटर्न है, इससे ये बनता है। सबसे पहले हम IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक को अपनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो पुराने हमारे एजिटेशंस हैं आज दिन भर के, उस प्रैक्टिस में आने से पहले के, उसको हम रिलैक्स करते हैं। उसके बाद सेंटरिंग ऑफ द बॉडी करते हैं। हम बॉडी को 3D सेंटरिंग में लेके जाके उसकी जो डिफरेंट हमारी। Sir, excuse me, sir. जी सर। Sir, your screen is not visible, sir. ओके ओके, Yes, sir. आई शुड स्क्रीन शेयरिंग अगेन। Yes, sir. You have to do screen sharing again. Yes, sir. Now it is visible. सॉरी फॉर द ना डिस्टरबेंस हुई आप लोगों को, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। तो ये हमारी साइक्लिक मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं। इनमें हम लोग जो हैं डिफरेंट आसनास और रिलैक्सेशन की जो टेक्निक्स हैं उनको अल्टरनेट करते हैं। ठीक है जी। और इसके जो हमारे बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स अगर हम साइक्लिक मेडिटेशन के देखें सर, अगर हम अपनी नॉर्मल 6 घंटे की स्लीप लेते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल का रिडक्शन है, मेटाबॉलिक रेट का रिडक्शन है, वो 9% हमारे जो डिफरेंट रिसर्चर्स से पता चला है 9% का रिडक्शन होता है। लेकिन अगर हम जो TM करते हैं, TM में 20 मिनट का TM जो है वो हमें 17% की रिडक्शन दे रहा है। जबकि हम साइक्लिक मेडिटेशन अगर अपनाते हैं तो लगभग ये 30 मिनट का एक हमारा प्रोसेस होता है। लेकिन इसको आपका रिडक्शन पैटर्न जो है वो हमारा 25% की हमें रिलैक्सेशन आती है, जो कि इक्वलेंट टू 9 आवर्स ऑफ स्लीप हमें 30 मिनट की साइक्लिक मेडिटेशन से मिलती है। तो ये हमें उसका फायदा है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास स्ट्रेस के इंडिविजुअल्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं,
हम उनके लिए एक जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी बना सकते हैं। आप लोग इसे थोड़ा देख सकते हैं। सबसे पहले हमने प्रेयर उनके लिए बनाई है, उसके बाद वार्म अप है, वार्म अप में जॉगिंग है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग है, साइडवर्ड्स बेंडिंग है, ट्विस्टिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, आप इन टेक्निक से जानकार हैं जी? इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। नहीं सर। ओके, ये इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है जो ये डेवलप की गई है। इसमें क्या है कि आपका इंस्टेंटली आपको कैसे अपनी जो रिलैक्सेशन अचीव करनी है। इसमें सबसे पहले आपने लेट जाना है। अगर आप इस समय चेयर पर भी हैं तो सर हम 11 बजे से ओवरशूट कर सकते हैं टाइम, 2-4 मिनट ओवरशूट कर सकते हैं? यस सर, श्योर श्योर श्योर। जी जी जी, वैसे मैं माफी चाहूंगा लेकिन 2-4 मिनट अगर ऊपर हो गए तो थोड़ा प्लीज बियर विद मी। तो अगर आप लोग अपनी चेयर पे बैठे हैं और जो लोग शूज पुट ऑफ कर सकते हैं तो वो शूज पुट ऑफ कर दीजिए, और अपने जो सीट है, मतलब आपके जो हिप्स हैं, आप बिल्कुल आगे की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लूं? आप देखना चाहेंगे? श्योर सर, ऑफ कोर्स। यस सर, विजिबल। ठीक है, आप अपनी चेयर के ऊपर आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अपने पैरों को पूरा खोल लेंगे, एड़ियां नीचे लगा लेंगे, ठीक है। और आपके जो हाथ हैं वो हवा में ऊपर की तरफ रहेंगे, और आपके जो कंधे हैं इनको आप अपनी सीट पे बैक साइड पे लगा लेंगे, ठीक है जी। और गर्दन को आराम से रखेंगे, ठीक। लेकिन जो लोग लेट सकते हैं वो लेट के करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब हमने जो है अपने टोस से अपना ध्यान, मैं बोलता हूं, हमने अपने टोस जो हैं, टोस से अपना ध्यान हटाना है और टो को, पैरों की उंगलियों को बाहर की तरफ खींचते हुए टाइट कर लेना है। फिर हमने अपने एंकल्स को टाइट कर लेना है, फिर हमने अपने काफ मसल्स को टाइट कर लेना है, टाइट। फिर हम और थोड़ा और ऊपर आएंगे, अपने नीज को टाइट कर लेना है, टाइट। और उसके बाद हम जो है अपनी थाइस को टाइट करेंगे। फिर हम अपने हिप्स को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे और हिप्स को टाइट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी बैक को टाइट करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन को टाइट करेंगे, टाइट। चेस्ट को टाइट करेंगे, हाथों की मुट्ठियों को बिल्कुल टाइट करेंगे, बिल्कुल टाइट, तो टाइट करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, मुंह को, मुखमंडल को पूरा टाइट करेंगे, टाइटन 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 टाइटन। रिलैक्स, एकदम से सारी बॉडी को रिलैक्स छोड़। कुछ पलों के बाद आप जो है अपनी श्वास को धीरे धीरे 2-3 सांस लेते हुए वापस आएंगे। धीरे से आप वापस अपनी चेयर पर, ये इसकी एक क्रिया है, पहली क्रिया है, शायद अभी आपको उतना ना महसूस कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो रिलैक्सेशन पैटर्न है वो बहुत अच्छा होगा। इसका एक प्रैक्टिकल आपको मैं बताता हूँ। आप मान लीजिए गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, आपको थकावट के कारण नींद आ रही है, ऐसी स्थिति में आप कभी भी ड्राइव ना करें, प्रॉपर रेस्ट करें, लेकिन आप अपनी गाड़ी को साइड पे लगा के आप IRT कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी थकावट दूर होगी। लेकिन और जो साथ में सावधानियां हैं रोड की, वो भी आप साथ में कीजिए,
और प्रॉपरली अपना थकावट दूर करके फिर ही चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एड ऑन एक साथ में बता रहा हूं कि आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको जो वो उस समय की जो आपकी थकावट है उसको ये दूर कर देगा। ठीक है जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं वैसे मॉड्यूल के लिए आपको कह रहा था, आप अपने क्लाइंट के लिए आप वो मॉड्यूल बना सकते हैं। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक का हमने उसमें स्थान दिया है। उसके बाद आप उसको सूर्य नमस्कार पे लेके जाएंगे। जैसी आपके क्लाइंट की एंड्योरेंस है, आप 5 राउंड 10 राउंड तक भी लेके जा सकते हैं। और जैसा आप उसको समय देना चाहें, 40 मिनट का मॉड्यूल देना चाहें तो 1 घंटे का, 1 घंटा 10 मिनट का मॉड्यूल, जैसा आपकी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप मॉड्यूल बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअलाइज कीजिए उसको। ठीक है। फिर आपका आ गया क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें भी ये भी उसी तरह से एक टेक्निक डेवलप की गई है रिलैक्सेशन के लिए। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहले आप अपनी जो एब्डोमेन में आपकी जो रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं, आप उसको वॉच करेंगे 5 साइकिल तक। फिर आप जो है जो 5 साइकिल तक अपनी बॉडी अपने जो इनहेलेशन है आप उसको बैलूनिंग से और पूरी तरह से फोर्सफुल एक्सपिरेशन के द्वारा बिल्कुल डिफ्लेट करेंगे। और तीसरी में आप एनर्जाइज करेंगे। आप हर सांस की इनहेलेशन के साथ आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है, और एक्सहेलेशन के साथ आप महसूस करेंगे कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है। और इसके साथ ही आप अपनी नाभि पर ध्यान रखते हुए अकार का जब आप एक्सहेल करोगे लास्ट तीसरे स्टेप में, तब आप अकार का जब उच्चारण करेंगे तब आपको ये जो है क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप ब्रीदिंग सिंक्रोनाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हैंड स्ट्रेचिंग इन एंड आउट, एंकल स्ट्रेचिंग, टाइगर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, सेतु बंद और भद्रासन ब्रीदिंग। इस तरह से आप ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं एक्सरसाइज के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए। ठीक है जी। समझ गए हैं सर आप? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। जैसे जैसे आप सिंक्रोनाइज करेंगे, श्वास अंदर लेते हुए इतने हम अपने बाजुओं को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप वापस आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस तरह से बनेंगे। ठीक है जी। ऐसे ही अलग अलग है, टाइगर ब्रीदिंग है, ठीक है, सेतु बंदासन और भद्रासन के कॉम्बिनेशन में ब्रीदिंग है ना, पर्वतासन और भुजंगासन की कॉम्बिनेशन में ब्रीदिंग है। आप उस तरह से अपना ये वो कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास योगासन का अभ्यास है। हम उनको स्टैंडिंग आसन, ठीक है, सिटिंग आसन, प्रोन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में बनाएंगे। फिर हम उनको डीप रिलैक्सेशन टेक्निक तकरीबन 7.5 से 8 मिनट का इसमें रहेगा। उसके बाद हम उनको प्राणायाम का एक कराएंगे प्रैक्टिस, जिसमें आप फुल सेक्शनल ब्रीदिंग है, जिसमें आपके जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, एब्डोमिनल कंपोनेंट, थोरेसिक कंपोनेंट और क्लेविकुलर कंपोनेंट। आप इन तीनों का सिंक्रोनाइजेशन करते हुए आप उनको जो है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं। फिर कपालभाति है, नाड़ी शुद्धि है, भ्रामरी प्राणायाम है। स्ट्रेस के पेशेंट्स को भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज्यादा अच्छा है। इसमें डिफ्यूजिंग इफेक्ट आता है। जब आप न का जाप बोलना है, इसमें हम लोग गलती से कई बार न बोलते हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपने जो है श्लोका चैंटिंग या फिर जो है ओमकार की जो है उच्चारण करना है। इसके बाद आप उनको मेडिटेशन के लिए कुछ देर ध्यान के लिए रोकेंगे। फिर आप क्लोजिंग प्रेयर, इस तरह से आप एक मॉड्यूल बना सकते हैं जी। ठीक है। आगे है इस सब का आउटकम क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आउटकम क्या निकलता है। एक तो हमारा हमने जैसे
पहले जिक्र किया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो रिडक्शन आती है उसमें। दूसरा है हमारा स्टीप डिक्रीज इन कंपोजिशन ऑफ ट्रंकुलाइजर। जो हमारा पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, वो ट्रंकुलाइजर्स ले रहा है बाहर से, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स ले रहा है, तो उसके हमें रिडक्शन आती है, उसकी डोज में रिडक्शन आती है। तीसरा है जो पेशेंट के ऊपर इसका क्या, उसके मानसिक स्तर पर क्या होता है, उसकी क्लैरिटी में क्लैरिटी आती है, उसकी थिंकिंग में। उसका जो बिहेवियरल चेंजेस में हमने नोट किया था कि उसकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्टेड नहीं होती, पिन पॉइंटेड होती है, क्लैरिटी होती है, ठीक है। और उसकी जो एक्शंस हैं, उसके एक्शंस में जो है रिलैक्सेशन की फीलिंग होती है। वो जो भी अपने दिन दैनिकी के काम हैं, अपने चैलेंजेस हैं, वो उसको रिलैक्स मेथड में कर पाता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. Now I am requesting to Mr. Sapnil Inayar. He is a PhD research scholar, Department of Physical Education, Guru Ghazidas Vishwavidyalaya. Sapnil sir, please deliver two vote of thanks. Sapnil sir, please. Good morning, everyone. This was the first day of our 5-day workshop on yoga. We are celebrating International Day of Yoga on this series. First day of 5 days workshop. Our workshop has started. Thanks to Dr. Rajan Kaushal sir, who was resource person for today's session. Sir has taught us many things. Sir has taught us many things about stress. Sir has taught us many things about yoga, positive stress, negative stress, acute stress, chronic stress. Sir has classified the stress in very easy and very simple manner that we can understand it. And Sir has defined about stressors which cause stress. Sir has defined stressors also in physical, psychological, absolute, relative, and various other factors. Sir has defined that stress can be very harmful for physical as well as mental health. Sir has given us the information about when stress increases, what happens to our body. When stress decreases, what happens to our body. Our blood pressure increases, our heart rate increases, our breathing capacity increases. So these are the things that we have learned from Sir today. And Sir has also defined cyclic meditation, deep sleep, and transcendent meditation. The major factor that Sir has given us today, the main topic that Sir has given today is about module for stress management. That is very helpful for us, that we can use yoga and asanas as a stress management module, which will help to maintain the stress level of an individual. And we have seen in COVID time that we fought the COVID period last year only, but right now also there are many people who are affected by this stress and depression thing. Yoga is very helpful, and with the help of Sir's guidance, we got to know about the module of stress management that we will definitely be using in our physical education field to encourage physical educators to include yoga as a important factor for stress management. Uh, Yoga, we in physical education we deal with physical factors of yoga, but Sir has taught us about the stress management factor of yoga, and we will definitely be using this. Sir, thank you for this very valuable session on behalf of Department of Physical Education, Guru Ghazidas Vishwavidyalaya. We hope to get you back soon, and we hope to listen from you very soon. Sir, thanks a lot, sir.
Thank you, sir. Thank you very much. I'm very thankful to the management, to the department, to the head of the department, sir, and all my friends who listen me, and my words maybe of any of your help. मेरे लिए बहुत ही ये मतलब होगा, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि अगर मेरे शब्द आपके लिए Thank you so much. जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. All the participants. हेलो, सभी पार्टिसिपेंट सुनेंगे, वो शाम Yes, तक sir. गूगल फॉर्म जरूर भर देंगे आप लोग। ठीक है, सौरभ मंडल आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, फीडबैक फॉर्म वगैरह अभी आ जाएगा सर का, आप लोग जो भी है आप फीडबैक फॉर्म भर देंगे। ओके, थैंक यू हाँ सर, बिल्कुल। ओके सर। Sir, meeting until ओके सर, ओके सर। सर, may I conclude the meeting, sir?